Hi, everyone. We'll just wait for a couple of minutes before we start. Thank you so much for joining this Bachpan Manao Masterclass. Um, we'll just give everyone a couple of minutes before we start. Thank you. Hello. Namaskaram. While we're waiting, if we can all just take a minute and introduce ourselves on the chat, where you're from, why you're here, what's exciting to you. It'll be lovely to see where y'all are from. All right, we're at 4:33 and a lot of you are here already, so we'll get going. Good afternoon. Welcome everyone to another Bachpan Manao Masterclass. It's lovely to have you here today. Thank you for taking time on this lovely Tuesday afternoon. We have a very special masterclass today around math, and math is all around us, and the real world is filled with math. And when it comes to learning math, it's really when you go from the real to the abstract is where the learning really happens. Games make the journey of learning really joyful, and it's really important to create environments where the fear of math is not something we're perpetuating. That's why we're really happy to have a Language and Learning Foundation hosting this masterclass on the building blocks for math success. LLF was founded in 2015. It is an NGO focused on improving foundational literacy and numeracy outcomes in government primary schools across India. LLF partners with state governments to drive systemic reforms, build teacher capacity, and do demo programs at school level to demonstrate effective practices and improve learning outcomes. Um, Studies have shown that the biggest problem for kids in terms of math in the early years is that they can't really translate their learning into the real world, and that makes it all the more important for organizations like LLF to share insights on their teaching methods with all of us. This masterclass focuses on equipping educators with skills to design comprehensive lesson plans for teaching foundational numeracy effectively. What's very exciting is that all of you all will get the opportunity to explore systemic instruction with activity, providing practices to children and integrating math games. And like I said earlier, games really make the learning of math much joyful. Um, Through some demos and some practical activities, Sunil, who's here today, he's a practitioner in foundational numeracy with over 12 years of experience, is going to be taking us through this masterclass. With that, I'm going to pause and I'm going to hand over to Sunil. Thank you so much again to everyone. Go ahead. Thank you so much, Sita. Thank you so much.
and I am very excited to be here with this diverse group. Okay, so let me just share with my PPT first. So welcome all of you once again to this master class on four block model for numeracy lesson plan. And my name is Sunil Kuswaha. I am numeracy lead at Language and Learning Foundations. Before going into this session in the detail, just let me briefly say about our foundations. As Hita has already told us about it. The Language Learning Foundation, we are a very system focused and impact driven organizations dedicated to foundational literacy and numeracy in India to improve the quality at scale. And we partner with the state governments to improve FLN, and we work in very systemic way with the government on three major aspects. One is the continuous professional development, in which we design numeracy and literacy courses, and we do implement with the teacher and teacher educators. Second, we do the demonstration program with the district officials at district levels and school to showcase that how these practices can be implemented at district levels. And third, we also do a systemic reform. We work with the state government for instructional design and policy reform with the CRT and NCRT and also the Samagra to design the curriculum, instruction, textbook, and the policies to bring us change at the scale levels. And by 27, we aim to reach 35 million children in India through our demonstration and other programs. So this is a brief intro, and basically LLF we started with the language work, but later in the 2021 we also started working in the numeracies. And the numeracy we work as same rigor and discipline as we do in the literacy that I will explain you later. So before going to the sessions, let's just think about it. What you can do, just see I have the screen here. Can you think of a possible relationship? If you see the two numbers here, 5 and 7, what possible relationship you can found in these 5 and 7s? You just you can respond in the chat box, writing your response. Is question clear? Just respond the group. 5 is less than 7. I can say yes. That's great. They are both prime and odd. They are not divisible. Oh, great. One digits odd number. Okay, so there are many relations you can find in the simple two numbers. So numbers you see here, number is not only very simple for the children and for everyone. It's not just about reading, learning to how to read and count the numbers. There are many things in numbers, and to have a comprehensive understanding of numbers, children need very deep and different aspects of their numerical relations and concept and the process that already inbuilt in that concept. So we go now to the our sessions. Just one. Is my screen visible, everyone? Yes, Sunilji, but we are Yeah. still on the Okay. icebreaker slide. Okay. Okay. So now, so what the next another task here. So what we are going to do today, as Hita also explained that this master class is about thinking. How do we design a very structured lesson plan following
some aspect of the numeracy that we'll discuss later. And you know that lesson plan play a very big role and important role in the teaching math and any subject. So suppose you have 60 minutes to teach any concept, any competency of the mathematics. Then how will you design your lesson plan? What aspect will you cover in the lesson plan? How will you structure your 60 minutes? That you have to think. And while you're thinking, you need to think about the how will you engage the children, what different teaching strategy you will add in that lesson plan, and how will you provide the practice and other component of the lesson plan. Just scan from your mobiles, or you can use the link also, and just respond in the Mentimeter. Is everyone able to scan the QR code? So I see here some responses here. CPA, yes. Countings, code and even numbers. I've designed the pedagogy which includes play based, research based, and also joyful lessons. Play is important components. Use materials like sticks to show number or quantity. Finger count, gather stones. I've included teacher actions and teacher's mindset in the lesson. Game based activities, introductions activities where I will introduce the children to count. Okay, good. Storytelling and activity based. Yes, this very interesting. Story play a big role that can be also used in the lesson plan, and that must be. Play based learning, use of hands on materials by using sticks, stones, and others activities. So what we are getting from here, we are very aligned that mostly in the teaching, I see here using some approach like the CPA is mentioned here to build their concept. Games, most of people are saying games is important.
Yes, games is important for the reinforcing the learnings, number and symbols and activities. So we are clear on that two, three things very important: the games and activities, and the CPA for enhancing children's concept. Okay, thank you. Anyone want to say anything? You want to unmute yourself and say anything? You can raise your hand and share here. Okay, so now coming to that, how do we organize the lesson planning? You can see here, this is also recommended in the NCFS. I hope you have some of you have referred NCFS, National Curriculum Framework for Foundation Stage. That also recommended how to design a lesson. So in the foundational stage, we follow a four-block model to design our lessons. And you can see the structure here, the oral math talk, skill teaching, skill practice, and the math games. And why do we use this all four block here? So there are different block have different purpose objective, but they help each others grasping the math concept. And you know that the why we are keeping the first block oral math talk, this play a crucial role in the anywhere in the go in the schools. You see that mathematics teaching become very pen and paper oriented and writing oriented. Here in the lesson we are educating that when you are going to teach the children's, first start with the oral talk with the children's about mathematical concept process maths in their real lives. Just keep it in totally oral in the context the natures, no pen and paper, so that children's understand and children also able to learn maths in oral way. And you know that we are talking about the numeracy, and in the real life most of time we do use math in the oral, not in the pen and paper. So oral skill become very important to build. And when we do the oral math talk with children, children get opportunity to explain, they come able to get opportunity to communicate. That's why it's a very important to have oral math talk. And it's also important to create a culture of talk discussion around mathematics in the classrooms. And then once you discuss with children, then you go to the skill teaching. Now here we follow very systemic and explicit guided instruction. When I say the systemic explicit guided instructions, they are very defined steps that how we will do the activity with the children with the step by step, so that children get a clear understanding of the concept and process. And once you do the activities, children also need an independent practice, and provide children different independent practice through the textbook, through the workbooks, to work on the math task. And once children have done, so do some math game at the end of the lessons. So children get some engagement the games, and we know that the early years game play a big role. So you see here the two block, first is for building concept process, and the last two blocks is more oriented for the building children's understanding and strengthening their learnings. So by the game children are also strengthening their learnings. And on the upper side, you can see there are some approach that we use and combine in this block to design the activities in the very systematic way. The later, the next session, we will see then the details. But point now question is why we are using the four block models. Anybody will ask that why you are using four block model, and what is the goal behind it? The goal behind is this using four block model is helping children to achieve mathematical proficiency. It's very clear that we want children become mathematically proficient. You say proficiency, you say math mastery. So this mathematical proficiency was documented in 2001 by National Research Council in adding and is also
available in the books, adding it up, helping children learn mathematics. They summarize the different research and come up with that when we say that children become mathematically proficient. Arangam, yes, you have raised your hand. Uh, yes, so can you unmute yourself and speak if you want to say anything? Yeah. Arangam, you can speak, yes. I'm not able to listen to you. Okay, we're moving to ahead, yes. So see here the mathematical proficiency and why we are talking about it. You can hello. Sorry, somebody mute me. The noise. Uh, so why we are talking about the mathematical proficiency? The mathematical you use the other word also the math mastery. A different country use the math mastery, but the proficiency we say that. For example, if you're teaching, your goal is in the grade one that children should able to learn the single digit additions. When will you say that my child is proficient in the additions? What are the elements that define that proficiency? So there are different debates in the country. I know that many people advocate for building conceptual understandings. They say that the concept is very important and we should build the concept. Many people are very oriented to procedural understanding that process. But as a proficiency, we see as a very comprehensive that only concept is not complete in the math learning, and only the process is not complete the math learning. Children need also conceptual understanding. Children need procedure fluency. Children need to different strategy. Children need to different context to apply that where they will apply the math, and children need also to learn to how to reason the mathematical concept process. So their reasoning skills also need to be built. So these are the some strengths that we need to think as a teacher educator when we are designing the activity for the childrens. Are we combining all these strengths in our lesson plan? And we have when we are writing the activities, when we are making the activities, are we focusing all these strengths, not only the concept, not only the process, not only the strategy, not only the reasoning, but all the strength? And when you focus on the strength, then children will become the proficient, right? So let's give us some example here, a brief example here. So suppose here the question 30 plus 20 is a question mark. Whenever somebody asks you, what does it mean by the conceptual understanding? What is conceptual understanding? So conceptual understanding, the simple term is meaning of the mathematical symbols and the diagrams. When you say that my child is understand the concept, it means that okay. सो अगर आप इसको मिक्स करते हैं सॉरी इसको आप देखते हैं कि 30 + 25 is a question mark. If you write a question on the board and ask a child to read it and ask the children what does it mean, if child knows that 34 means there are three tens, four ones and there's a plus sign, इसका मतलब कि प्लस का मतलब मुझे जोड़ना है, or there are 20, that 20 is means the two tens and they know the quantity of two, and they also know that the plus sign here, that plus sign is mean it the both sides should be equivalent. So if children know the meaning of these mathematical symbols and they can able to explain you, then you can say that my child knows the concept of this mathematical equation. If child is doesn't know the meaning of the symbol, they don't know the concept. Now once they know that concept, now they need to understand that how to carry out, मतलब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे इसको हल करेंगे.
तो अगर हल करने का तरीका उसको पता है कि अच्छा मुझे 34 और 35, 34 20 को कैसे जोड़ना है, तो वो जोड़ने का तरीका क्या है, अगर वो बच्चे को आता है तो आप बोलेंगे उसको प्रोसीजरल फ्लुएंसी उसको है। और फ्लुएंसी का मतलब बच्चे बिना गलती किए हुए और शुद्धता के साथ उसको से अच्छे तरीके से जोड़ पाए। तो ये कैसे हल करना है सवाल, ये भी बच्चों को आना चाहिए। सवाल का मतलब क्या है, ये भी बच्चों को आना चाहिए। फिर इसको हल करने के अलग अलग तरीके क्या है। आपको अक्सर पूछा जाए चैट 34 + 20 व्हाट आर द डिफरेंट वे टू एड इट। तो जरा आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं लिख के कि अगर आप 34 और 20 को जोड़ना हो तो आपके जोड़ने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको जोड़ने के। जस्ट आप अपने चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए, सोचिए इसको और अपने चैट बॉक्स में जस्ट राइट इट। ओके, 30 + 20, ओके, 54। आप इक्वेशंस देखते चलिएगा, जरूरी है कि दोनों तरफ बराबर हो। 30 × 20, यस यू कैन डू 30 × 20, 30 × 20, okay. Is there another way to do that? Right, there are different way to do the 30. So you can add to the 50 and the 50 plus 4, and you can add 4 in the 20, it become 24, and you 24 in the 24, you are adding 30, it becomes 54. So there are different way. Okay, but I've asked you, uh, why did you split 34 plus 30 and 4? Why did you split? आपने 34 को 30 और 4 में क्यों तोड़ा आपने? तो फिर आपका जवाब क्या होगा? अगर आपका बच्चा इसका जवाब दे पाता है, इफ योर चाइल्ड एबल टू explain you, able to reason, tell you that why 34 can be split in the 30 + 4, it means बच्चे को रीजनिंग आती है, उसको तर्क आता है, मतलब चिल्ड्रन नो दैट रिस्पॉन्स ऑफ वाई, इसको वाई का आंसर आता है। तो ये भी जरूरी है, और अपने टीचिंग में आपको ये भी सवाल पूछने की जरूरत है कि आपने जो प्रक्रिया किया है वो क्यों किया है। तो क्यों का जवाब आना बच्चे को जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो बताए कि जब बच्चा मुझे बिल्कुल नहीं आता, ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों होगा, तो इसका मतलब बच्चे को रीजनिंग नहीं आता है, तो उसको एक एस्पेक्ट उसको नहीं पता है। मुझे याद है मैं एक बार एक क्लास में गया था, वहाँ पे पैटर्न टीचर ने पढ़ाया था, तो पैटर्न्स में उन्होंने सर्कल स्क्वायर का पैटर्न बनाया था, वन सर्कल देन स्क्वायर देन सर्कल देन स्क्वायर। जब मैंने पूछा बच्चों से कि अच्छा ये बताओ अब स्क्वायर के बाद सर्कल क्यों आएगा, तो ठीक बच्चों का जवाब था जाने कि मैडम ने बताया। तो अगर ऐसे बच्चे आपके जवाब देते हैं, इसका मतलब कि बच्चे को रीजनिंग नहीं पता है, वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसको नहीं मालूम है। तो अगर वो क्यों का जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसको एक एलिमेंट जो है प्रोफिशिएंसी का उसको नहीं आता है। सो समरी रूप में हम कहें कि जब आप तभी बोलेंगे किसी कॉम्पिटेंसी बच्चा प्रोफिशिएंट है कि वो सारे चीज़ों को जानता है, वो उसका मीनिंग जानता है, उस सवाल का कैसे हल करना है वो जानता है, प्रोसेस नोज, और उसके अलग अलग तरीके क्या हैं वो जानता है, और उसके अलावा उसके तर्क जानता है, रीजनिंग जानता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, वो उसको बता पाता है। तो इतना चीज़ें जब उसको आएगा किसी बच्चे को एक कॉम्पिटेंसी में, देन यू कैन से दैट माई चाइल्ड इज proficient in a particular competencies at domain. And there's a possibility that your child sometime is proficient in the addition but not in subtraction. Then you have to see that in which aspect children are lacking, and that aspect you need to teach in the classroom. So this is very crucial for designing a lesson plan. Now moving to the next, we'll go detail one step by steps with each block. I will just give you brief about the blocks, and then I will demonstrate some activities with you how you need to do in the classrooms.
आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड यू आर लिसनिंग. Okay, so now coming to the block 1, this is the oral mat talk. अब इसका भी एक एरिया है कि ओरल मैथ टॉक आप पूरे साल क्या करेंगे. व्हेन वी think about the activities, we think about the whole year. Oral math talk, there are three aspects of doing the oral math talk. One is you have, so what you need to do, so you have to build the different areas and different theme to do the classrooms, and each day you have to decide that what components you are going to cover through the oral math talk. So there could be three areas. One, you can take some area to talk on the concept, process, reasonings. Another area could be mental calculations. It's very important. So you can plan some activities to do a mental calculation each day, 5 to 10 minutes. You are asking some question and asking children to solve the mentally, not in pen and paper. And third is the maths in the real life. So there are the maths in the real life, and we must incorporate here. You can see some visual here. You can some visuals or some theme. Like if I ask you, where did you see number today? So then what will you respond? Just respond the chat box. अगर आपसे पूछूं कि आज आपने नंबर कहाँ देखा, bus numbers. Thank you, Radhika. Bus numbers are noting down. The bus numbers, phone, time, date, calendar. Oh, interesting. In a clock, in a money. Yeah, each day we many times we see the metro platform numbers. Can you more zoom in? Okay, yes, so sorry. Exam paper, money, yes. Team meeting data. Oh, different people see the number in a different way. That's why we talk about the numeracy, because numeracy for different people, numeracy is different. If I am working in the data, I need different numeracy skills. If I'm a carpenter, I need different numeracy skills. Birthday, kilometers. So they see the simply you can ask one simple question with a child. Where did you see number today? And see, there are lots of opportunity to talk about numbers. So if the number is on the bus, it has a different meaning. If number, there's a numbers on, yes, 4 block, 1, 2, 3, 4 in presentation. Yes. Thank you, Vikas. Yes. So different in the different context, number had different meaning. If number is coming on the money, it's different meaning. It's number on kilometers, milestones, different meanings. So number had different meanings. It's sometimes represent the groups. It's sometimes different things. So based on the context, meaning of number change. For example, आप पूछिए बच्चों से, जैसे बस पे लिखा हुआ है दिल्ली का नंबर लिखा है 3438, इसका क्या मतलब है? क्या इतनी बसें हैं यहाँ पे? बात करिए तो, या सीट पे जो नंबर लिखा हुआ है 44, होटल में जाते हैं, होटल में नंबर होता है 104, 105, तो 105 क्या रूम है वहाँ पे? नहीं है। तो आप सीखेंगे कि यहाँ पे नंबर्स क्वांटिटी नहीं बता रहा है, नंबर क्या बता रहा है? लेबल कर रहा है, लेबल है, एक नाम के रूप में बता रहा है. सो नंबर्स के डिफरेंट मीनिंग है. तो जैसे ही आपने एक कॉन्टेक्स्ट लिया, कितने सारे मीनिंग आ गए नंबर्स के, कितने सारे अपॉर्चुनिटी आ गई बात करने की. अब बच्चों को भी लगता है कि अच्छा, उन्होंने वो जो अनुभव देख रहे हैं वो यूज किया जा रहा है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे आप अलग अलग थीम्स प्रतिदिन आप बच्चों के लेके आप बात कर सकते हैं. कुछ मेंटल रियल लाइफ में यहाँ विजुअल्स हैं, हम उसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं. और बस एक डिटेल में जाने से पहले आपसे हम जानना चाहेंगे चैट बॉक्स में, या अपने को अनम्यूट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है. सो आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं कि और भी नंबर्स पे आप क्या क्या, ऑपरेशन पे क्या क्या चीज़ें आप बात कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई. एक तो आप कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, रीजनिंग पे बात कर सकते हैं. एक तो आप मेंटल कैलकुलेशन पे बात कर सकते हैं, बच्चों को मेंटल कैलकुलेशन एनहांस कर सकते हैं. दूसरा, आप रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट पे बात कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट 3 एरियाज.
For example, in the numbers counting, you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The simple and ask children, okay, what is happening? When I counting 1, 2, 3, 4, how many numbers is increasing? And if I'm counting back, what is happening? So different uh, topics have different way to talk about. Yes, there's a game, readers, rhymes, stories. You can use the stories. You can talk about the stories. Yes, you can read out the stories and talk about that. Might talk on pictures. It is very interesting. Yes, we also design some pictures, and pictures is fantastic way to do a math talk because it's provided lots of opportunities to talk and the same number in the different forms. Yes. So see that this math talk create a fantastic opportunity for children to engage in the discussions, communicate and share their understanding and correlate with their math lives. That's why we say the math talk is in the initial is important. But it's not that only in the block we do the math talk in the block one. Math talk happen throughout the your lessons. But here math talk is very specific in the nature. It's a very specific in nature because it's in the oral. So we are emphasizing the oral talk, no pen and paper here in the static, so that they talk. So this is a very important. Yes, by using numbers we can a story. Yes, we definitely we can create a stories. Then go to the now let's discuss some themes. One second, I'm just wondering with many screen. Uh, Okay, so there are some themes. So we already discussed that where do you see the numbers? So what is increasing in numbers? And another themes we have written here, how to read numbers like 45. अगर आपको बच्चों इस पे बात करना हो तो आप कैसे बातचीत करेंगे? आप बोर्ड पे एक नंबर लिखिए 45 और बच्चों से बात करिए 45 को कैसे पढ़ना है, तो कैसे आप बात करेंगे? तो 45 आपने लिखा है तो बच्चों से आप बात करिए। अच्छा मान लो 45 में यहाँ पे 4 जो है ना ये पेंसिल के 4 पैकेट हैं और हर पैकेट में 10 पेंसिल रखा हुआ है और 5 खुले पेंसिल है। तो आपके पापा ने मम्मी ने बोला कि अच्छा गिन के बताओ मुझे कितने पेंसिल है, तो कैसे गिनोगे आप? तो बच्चों को बोलिए जैसे डिस्कस गिनने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अच्छा, तो मैं क्या ए से गिनूंगा 1 2 3 4 5? नहीं, क्योंकि मेरे पास खुले नहीं है, मेरे पास क्या है पैकेट, तो मैं डायरेक्ट पैकेट गिन सकता हूँ। पैकेट कैसे गिनूंगा? तो मेरे पास कई तरीके हैं, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट। हर पैकेट में 10 है तो 40 और उसके आगे मैं 5 गिनूंगा। अच्छा एक और तरीका है, हर पैकेट में 10 है तो मैं डायरेक्ट मुझे क्या गिनना है, पेंसिल गिनना है, मुझे पैकेट नहीं गिनना है। तो मैं डायरेक्ट पेंसिल बोलूंगा कि 10 20 30 40। अच्छा अब क्या मेरे पास पैकेट है? नहीं, मेरे पास पैकेट नहीं है, मेरे पास तो खुले हैं। तो खुले हैं तो मैं कैसे गिनूंगा? क्या मैं 10 10 में गिनूंगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास खुले हैं, तो खुले तो एक एक में है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा एक एक में किस में बढ़ रहा है, एक आप दो गिन रहे हैं तो एक एक में बढ़ रहा है, तो 40 के आगे 41 42 43 44 45। तो सिंपली आप बच्चों को ऐसे बात कर रहे हैं फिर नंबर चार्ट में दिखाइए। अच्छा 45 को जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो 45 में 4 को हम 10 10 में गिनना है, 10 20 20 एंड व्हाट इज हैपनिंग ईच टाइम व्हेन आई एम काउंटिंग द 10, इट्स इंक्रीजिंग द 10। तो दहाइयाँ 10 10 में बढ़ती हैं और इकाइयाँ एक एक में बढ़ती है, यूनिट इंक्रीज वन। सो सिंपली आप बात कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है फिर नंबर्स को, कोई भी नंबर 86, ओके 86 देयर 8 टेंस, I will count on my fingers. Okay, 8 I will count 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80s. And the 6 I will count once. The 6 fingers I will count from the 80s. और आप भी ये पैटर्न नोटिस किए होंगे लर्निंग फेज में बच्चे कई बार जब फ्लुएंट नहीं होते हैं, फ्लुएंट होने से पहले के स्टेज में बच्चे नंबर्स को उंगलियों पे गिन के बताते हैं। नाउ दे नो दैट पैटर्न्स की मल्टी डिजिट नंबर या जैसे ही 9 से ऊपर बढ़ते हैं there's a place values and place value we use the place values in the countings. Now we move to the counting from 1 to 1 to the counting in the tens and ones and the place values. So that is very important. You talk the number, how to read it. So this is the different theme for the concept, process and reasoning. Now come on to the second, the mental calculations. आप
में से कोई अनम्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं कि अगर अब बच्चों को कोई आप सिंपल नंबर बोले क्लास 1 के कि 8 + 9 कितना होगा, तो बच्चे कैसे बताते हैं इसका जवाब? How children respond if you ask a simple question that what will be 8 + 9? How children will do that? How they do? You can unmute yourself and speak. There's no right and wrong. Don't worry about that. We are here to discuss, share, and learning together. It's not that I'm going to tell you something and that you are listening this one. Harish, can they unmute themselves and speak? Yes, Sunil, they can unmute and they can speak. Okay, okay. So if you don't want to speak, you can also respond the chat. But that's why I'm saying that in the chat is writing very difficult. Sunil, you can also put it in presentation mode. I think it's difficult to read. Oh, If you one don't second, mind. yes. No, I'm not just asking these questions. I'm just asking simply, अगर आपको कोई नंबर आप पूछते हैं बच्चों से, what is the 7 + 8? How children do in the class 1, in the class 2, and you can imagine the government school also. Yeah, the different contexts, and you also have experience about that. Is anyone want to speak? I think I can share. Yeah. I've seen them doing it two ways. One being that they will count 7 on their finger, then they'll count 8 starting from where they left at 7, and then they will total it again. Another way they have seen doing them is कि वो पहले 7 डंडे बनाएंगे पेपर के ऊपर, फिर 8 डंडे बनाएंगे और फिर सब डंडों को काउंट करेंगे. These are the two ways I have seen them. And the class 2, how they will do? टू बी ऑनेस्ट मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ज़्यादातर बच्चों को इसी तरीके से काउंट करते हुए दिखा है. काफ़ी फोर्थ फिफ्थ वाले स्टेज में दे आर एबल टू डू इट, एकदम से अचानक से कर पाते हैं वो. बट यूजुअली 7 के बाद वो वापस से 1 पे शुरू करते हैं. पर चौथी पांचवी तक आते आते देन वो 7 के बाद 8 9 करके काउंट कर पाते हैं. सो दिस हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस. Yes. And अगर आपसे मैं पूछूं 8 और 7 कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 15 तुरंत? जी. Right? आपने कितना टाइम लिया सोचने के लिए? 2 से 3 सेकेंड. मे बी या इवन 2 से 3 सेकेंड आपको नहीं जरूरत होगा. तो आपसे हम सिंपली पूछें कि अगर 8 7 कितना होता है, 9 6 कितना होता है, 5 7 कितना होता है, 9 8 कितना होता है, तो आप क्विकली बताएंगे कि 15. इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग क्या हुआ है, ऑटोमेटाइज हो गया है सिंपल 18 तक के जोड़ में सिंगल डिजिट्स. ग्रेड 1 एंड इवन ग्रेड बाय द ग्रेड 2 हमको बच्चों को 18 तक के जोड़ में बच्चों को ऑटोमेटाइज करना है. जैसे आप जवाब देते हैं तुरंत, बच्चे वैसे तुरंत जवाब दे पाए. अब मामला ये है कि ये करते कैसे हैं. इसको करने के 3 स्टेज होते हैं. पहला स्टेज है काउंटिंग स्टेज, जो आप अभी बता रही थी कि अनता कि काउंटिंग स्टेज में बच्चे फिंगर से उंगलियों पे काउंट करके बताते हैं. और लेकिन हमें बच्चों को उस स्टेज से आगे ले जाना है. नेक्स्ट स्टेज पे, नेक्स्ट स्टेज द स्ट्रैटेजी फेज. स्ट्रैटेजी फेज में बच्चों को नंबर सिखाने हैं अलग अलग तरीके से, कि बच्चे नंबर्स को तोड़ के 10 बना के अलग तरीके से कर पाए. यस नीता, यू हैव रेज्ड योर हैंड. यस. यस, मुझे सिर्फ यही कहना था कि मैथ्स क्लास में ना ये जो स्पीड पे हम इतना ज्यादा जोर देते हैं कि बच्चों को जो बच्चा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करे उसको बहुत प्रशंसा मिलती है, और जो स्ट्रगल करता है, जो मैनिपुलेटिव्स यूज कर रहा है, उनको जरा हम हम उत्सुकाते हैं कि नहीं मेंटली करना चाहिए. इससे कभी कभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मैथ से डर भी पैदा हो जाता है, क्योंकि कोई बच्चे हैं जिनको थोड़ा वक्त लगता है ये सब प्रोसेस करने के लिए, और मैथ्स क्लासरूम में ये जो राइट आंसर पे और स्पीड पे जो फोकस हो जाता है ना, उससे बहुत बच्चों को जिंदगी के लिए फिर मैथ से डर लगने लगता है. एंड
I think along with all these strategies, अगर हम ये फोकस करें कि मैथ्स क्लासरूम सेफ स्पेस है, कि इट डजंट मैटर आप टाइम लो, लेकिन आपकी सोच जो है वो ज्यादा जरूरी है, rather than just coming up with the correct answer in the shortest possible time. Yeah, it's a very important point. I will come to that. Yes. So it's not about only the speed. Yeah, that we should not more emphasize without following any trajectory that jumping to the speed. Yeah, I will come to that. Thank you so much for sharing that. Sarvani, आपने raise किया hand. Oh, I think I actually second that. That the fear of maths is so great, and it is the speed that Neeta is talking about. I think is extremely important to kind of get into our heads that as teachers or as facilitators we cannot focus too much on speed. I mean, one thing that we can focus on is these relationships. For instance, थोड़ा I think advanced stage में होता है कि 8 plus 7 अगर हम करें तो दो तरीके से हम सोच सकते हैं कि 8 क्या है, 10 से 10 minus 2, 7 क्या है, 10 minus 3. And then या फिर और एक method है कि if we are saying 8 plus 7, we can ask them to calculate that. Okay, 8 into 2 is what? 8 by 2 is 16, right? So 16, and here we're talking about 7, so minus 1. Again, this comes at a later stage, I know, but I think these relationships, just making them understand these different ways of solving, as you're all discussing. I mean, I'm not saying anything new here. I think these relationships are more important than letting children or asking children to quickly calculate with speed. I mean, that was a very, very important point. And yeah, that's all I want to say. Thank you. तो देखिए मुझसे पूछेंगे तो अर्ली ईयर्स में हमें कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और जो एक नेचुरल डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। और जहाँ तक रही बात ये स्पीड की, तो हम स्पीड की हम बात नहीं कर रहे हैं कि हाउ फास्ट यू आर। इट इज़ अबाउट ऑटोमेसिटी, द क्विकली रिस्पॉन्डिंग। और इसके भी 3 स्टेज हैं। तो पहला स्टेज क्या है, तो काउंटिंग स्टेज। तो बच्चों को पहले कॉन्क्रीट से काउंटिंग करके जोड़ करना घटाना करना आना चाहिए, फिंगर्स पे आना चाहिए। जब ये बच्चों को आ गया, दे आर वेरी इजी, मतलब बहुत आसानी से वो कर पाते हैं, बच्चे सहज हैं, तो हमें उनको अब दूसरी स्ट्रेटेजी बताना चाहिए। 8 और 7 को जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ देखें, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी डोंट यूज इन द क्लासरूम। आई विल कम टू दिस लेटर। दिस इज अ सुबटाइजिंग कार्ड। इस सुबटाइजिंग कार्ड में आप देखें कि इसमें अलग अलग पैटर्न्स हैं बिंदुओं के। आप बच्चों को ये दिखाएं, और हम सिखाने में क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा शुरुआत में हम काउंटिंग काउंटिंग बहुत जोर देते हैं। जैसे कि हर टाइम बोलते हैं, अच्छा 5 और 4, बच्चा 3 और 2 बताए, 3 और 2 कितना होता है, बच्चा बोला 5, तब भी बोला नहीं गिन के बताओ, तो 3 बच्चा गिना 1 2 3 4 5। तो दिस इज द फैक्ट और द कॉम्बिनेशन कि बच्चे धीरे धीरे इसको आत्मसात कर लेते हैं, वो करने चाहिए। और ऐसा नहीं, इसको तैयार करना होता है कि आप कैसे इसको कराएंगे। सुबटाइजिंग कार्ड में आप बच्चों को पैटर्न्स देखना आना चाहिए, जैसे आप डाइस में देखते हैं। 5 आप जानते हैं, आपको 5 आपको ये नहीं समझना है कि 5 कैसे हुआ, आप तुरंत जानते हैं, इंस्टेंटली नो। 4 यू नो, 3 यू नो द पैटर्न बिकॉज यू हैव रिकॉग्नाइज दैट पैटर्न्स। तो सुबटाइजिंग कार्ड कुछ बच्चों का यूज होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। सी हियर हाउ मेनी डॉट्स सी हियर, द 6। तो 6 का कॉम्बिनेशन कितना है, 3 2 1, मतलब 3 2 1 भी क्या होता है, 6 होता है। ओके, ये देखिए जरा, ये कितना है, 6 है। अच्छा यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 और 3, तो 3 और 3 भी 6 होता है। तो बच्चों के अलग अलग कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए कि नंबर 8 केवल 8 नहीं है, नंबर को तोड़ा जा सकता है जरूरत के अनुसार। फिर उसके बाद आप जाइए अगले स्टेज पे। चलो अब हम गिनने के अलावा कुछ और तरीके सीखते हैं, ठीक है। कुछ और तरीके क्या हैं, और बच्चों को आसानी से करने दीजिए यूज की। अच्छा जब वो यूज कर रहा है उंगलियों पर गिरना है, गिनने दीजिए, डोंट रश द चाइल्ड। और बताइए कुछ और तरीका, जैसे 8 + 7, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा 7 को मैं तोड़ लूंगा और हर बार मैं 10 बनाऊंगा। तो
तो 7 में से मुझे 10 बनाने के लिए 8 को मुझे कितना चाहिए, इसके लिए फिर यहाँ पे आपको ये TLMC पहले यूज करने होते हैं, जिसको से द 10 फ्रेम, कि अगर आप कोई 2 नंबर लेते हैं और बच्चों को दिखाते हैं 8 और 7, तो 7 को अगर हम 8 में हमको जोड़ना है 7 को, तो 8 को 10 बनाने के लिए कितने बिंदु लेने होंगे, हमको 2 लेने होंगे। तो 7 में से 2 ले लिया हमने, 10, 10 5 15। जैसे ही 10 होता है बच्चों के लिए आसान हो जाता है। अच्छा 9 6, तो 9 6 के लिए क्या करेंगे, 10 बनाओ। तो 6 में से हम कितना ले सकते हैं, एक लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो फिर कितना बचेगा, 5, 10 5 15, 6 9। तो ऐसे अलग अलग तरीके। अच्छा कुछ और करते हैं हम, तो 6 6 कितना होता है, 12, 7 7 कितना होता है, 14, 8 8 कितना होता है, 16, 9 9 कितना होता है, 18। अच्छा 6 और 7 कितना होता है, तो देखिए 6 6 12, तो उससे कितना एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा कर लिए। या ऐसे भी कर सकते हैं, 7 7 कितना होता है, 14, तो 6 क्या उससे एक कम है, तो कितना होगा, 13। तो ये अलग अलग तरीके बच्चों को एक्सपोज करिए। अब बोलिए कि आप थोड़ा तरीके यूज करिए। आपको जब भी बोलना है ना, तो गिनने के बजाय आप गिन के भी कर सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग तरीके यूज करिए कि कैसे आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और बच्चों को इसमें कोई जोर मत दीजिए, स्ट्रैटेजी में कभी नहीं बोलते कि ये स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी से आपको हल करना है। आप हमेशा बताइए कि मुझे, मैं ऐसे करता हूँ, आप कैसे करोगे, आप सोचो अपना तरीका क्या है। तो वो बच्चों को ओपन छोड़िए कि बच्चे क्या तरीके यूज कर रहे हैं, फिर उस पर उनके रीजनिंग पूछिए। ऐसे ही सब्ट्रैक्शंस में आप बोलिए 50 - 7, तो बच्चों बोलिए हर बार 10 में से घटाओ। तो मुझे 50 - 7 करना है, तो मैं 10 में से 7 घटा लूंगा, तो मुझे 3 बचेगा, और मेरे पास 5 ऑलरेडी है, तो 8। हर बार मैं 10 में से घटा रहा हूँ। तो अगर मुझे 14 - 8 करना है, तो 10 में से घटाऊँ मैं। 14 क्या है, 10 और 8 4। तो 10 में से मैंने 8 घटा लिए, मेरे पास 2 बचे हुए हैं, 4 पहले से थे, मतलब 14 में से 8 करेंगे 6 होगा। तो 10 में से घटाओ। तो बच्चों को अलग अलग तरीके बताइए। ये जब बच्चों को करना आ गया, आपको बच्चे को 10 दिन 15 दिन ये आपके क्लास में, ये स्ट्रेटेजी आपको क्लास 2 में जाके बच्चों को आप ज़्यादा जोर दे सकते हैं। फिर आपको बाय एंड क्लास 2 बच्चों को बोलेंगे चलो अब टाइम बाउंड हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं और क्विकली करेंगे। और ये क्यों जरूरी है, इसको हम बोलते हैं बेसिक फैक्ट फ्लुएंसी। और 18 तक की संख्याओं में क्यों जरूरी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल्स देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप बढ़ते हैं क्लास 2 में, ये देखिए ये सवाल जो हल करने का इसका तरीका क्या है, ये कॉलम विधि में we all add in the column in this is the algorithm, we say the standard algorithm। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इकाई से इकाई जोड़ना पड़ेगा, दाएं से दाएं जोड़ना पड़ेगा। कभी भी आपका जो योग है ना, जो एडिशन का जो सम है, वो 18 से 18 से ज्यादा नहीं होगा। Maximum digit can be 9 and upper maximum can be 9, because in the algorithm we do the additions by the digit, not with the whole numbers। तो मैक्सिमम क्या होगा, 9 + 9 18। तो जिस बच्चे को 18 तक वो फ्लुएंट है, उसको पता है 8 और 7 15, और उसको पता है कि इसमें एक हम कैरी करेंगे अगले स्टेप में, तो उसके लिए ये जोड़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा, उसका काउंटिंग लोड उस पर कम हो जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए आप पहुंच गए क्लास 3 में और बच्चे को हल करना है, देखिए कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसमें। इसमें आप बच्चे को इकाई दहाई का ध्यान रखना है कि मुझे इधर से सवाल हल करना है। अच्छा इसको करने के बाद मुझे रीग्रुप करना है, रीग्रुप को हमको ऊपर लिखना है, देन आई हैव टू also add this number and then also add the regrouping numbers and then have add the total here। तो और मुझे सिंबल्स भी ध्यान रखने हैं। तो देयर आर मेनी स्टेप्स डू इट। और बच्चे को अगर ऑटोमेटाइज है तो उसका काउंटिंग लोड कम होता है और बच्चे और भी हायर चीज़ों पे ध्यान दे पाते हैं। तो ये स्पीड सब में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी एक सीक्वेंशियल स्टेप है कि कैसे आप जाएंगे, और ये हेल्प करता है बच्चों को हायर स्किल में बढ़ने में। अगर बच्चे मान लीजिए आपके 5वीं में पहुंच गए और उनको मान लीजिए 5वीं में आप तो और भी कंटेंट बढ़ गया, उनको 3 डिजिट का 4 डिजिट का ऐड करना है, उनको मल्टीप्लिकेशन करना है, और बच्चे अभी उंगलियों में फंसे हुए गिनने में, तो पूरा ध्यान उनका चला जाएगा गिनने में। इसको कहा जाता है वर्किंग मेमोरी लोड। तो अगर वो आपके काम में आपका ही अगर दिमाग बहुत बट गया कई सारी चीज़ों में, एक ही चीज़ में आपने कंज्यूम कर लिया, तो आपका दिमाग फोकस नहीं कर पाते और चीज़ों पे कि मुझे और क्या करना था, और उसके बारे में रीजन करना। उसके आप लोगों में से कुछ लोग सुना होगा नाम आप लोगों ने, मेटा कॉग्निशन स्ट्रैटेजीज।
थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो मैं कर रहा हूँ उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो जो मैं लगा रहा हूँ उसके बारे में सोच रहा हूँ, अच्छा मैंने किसको जोड़ा, कितना आया, और उसको मैंने कहाँ लिखा, और उसको अब आगे कहाँ ले गए, क्या उस बारे में मैं सोच पा रहा हूँ। तो उसके बारे की सोचने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंगेज हो गए एक बच्चा सर्टेन, तो शुरुआती में वो करना जरूरी है, बल्कि धीरे धीरे आपको काउंटिंग स्टेज से आपको अलग स्ट्रैटेजी, नॉन काउंटिंग स्ट्रैटेजीज टू द ऑटोमेटिसिटी बच्चे को ले जाना है, और उसकी एक सहजता फ्लो है, और उस मेंटर का विषय ओरल टॉक में आप फोकस कर सकते हैं प्रतिदिन। आई होप ये आपको मैं बताया। यस, तो मूविंग टू द नेक्स्ट 1 minute, so my slide. Yes. तो ये तो था एक मेंटल कैलकुलेशंस। हमने पहले रीजनिंग की बात की, कॉन्सेप्ट की बात की, अब मेंटल कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कुछ रियल लाइफ विजुअल भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने नंबर पूछा, आप कहाँ यूज किए, ऐसे कुछ विजुअल्स भी बनाए जा सकते हैं, उसको वर्कबुक में जोड़े जा सकते हैं, और आप बच्चों से पूछ सकते हैं अलग अलग तरीके। जैसे यहाँ करेंसी दिख रहा है, करेंसी के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कितने तरीके से आप जोड़ सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। बच्चों के रुपयों के बारे में पूछ सकते हैं, बच्चे कहाँ पे जो घटाना करते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। कुछ और भी आप कॉन्टेक्स्ट अलग अलग तरीके के विजुअल्स यूज कर सकते हैं बच्चों के रियल लाइफ से रिलेटेड। वो, और ये जरूरी है ताकि आप बच्चों को एक्चुअल जो व्यवहारिक सवाल है वो लेकर आए। जैसा अभी आप, मैं बहुत जगह एग्जाम्पल देता हूँ कि हम पेपर में रोज पढ़ते रहते हैं 20 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 2 लाख करोड़। क्या है 2 लाख करोड़? हमने तो कभी नंबर सिस्टम में पढ़ा ही नहीं जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे कि 2 लाख करोड़, लेकिन न्यूज़पेपर खोलते हैं तो 2 लाख करोड़ देख रहे हैं। ये क्या है 2 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, क्या मतलब है? तो अगर आप रियल लाइफ से जोड़ते हैं एक्चुअली जो कॉन्टेक्स्ट बच्चों पे आ रहे हैं, तो आप, मैं नहीं कह रहा हूँ 20 लाख करोड़ आप क्लास 1 बात करिए, बट ये हायर फंक्शनल न्यूमरेसी के लिए है। लेकिन देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि जो रियल में चल रहा है उसको भी क्लासरूम में लाना। तो 20 लाख करोड़ में समझना किसी से, ऐसा 20 लाख करोड़ में 20 लाख तो क्वांटिटी है, यहाँ पे यूनिट जो है करोड़ है, इसका मतलब 20 लाख क्वांटिटी है, उसकी यूनिट करोड़ है। तो इतने सारे करोड़ होंगे आपके पास, 20 लाख करोड़ होंगे अलग अलग यूनिट में। तो ये समझना, तो जब आप रियल लाइफ पे सवाल लेते हैं, एक्चुअली बात करते हैं, तो बच्चों को समझ में आता है कि वो मैथ्स कैसे कहाँ पे देख रहे हैं। जैसे हमने नंबर्स की बात की, तो ये एक ओरल मैथ टॉक सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों के साथ अलग अलग आप कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ये हमने 3 यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी फिक्स। आपको और भी लगता है कि कुछ एरिया हमको छूटा है जो इसमें वी शुड एड इट, यू कैन एड इट, यू कैन डू इट, but the main point is start your classroom with some oral math talk with the children. Emphasize the culture of oral talk in the classroom. Build that in the classroom. Let children to talk about oral and explain about their thinking, their understanding. Now moving to the next, our next block is the explicit skill teaching. Now we are talking about एक्सप्लिसिटली कैसे आप कॉन्सेप्ट बच्चों को, कोई एक्टिविटीज आप जब डिजाइन करते हैं तो हम कैसे करते हैं एक्टिविटीज को, उसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करते हैं। बहुत लोगों ने अभी जैसे ग्रुप में शुरुआत मैंने सीपीए की बात की, उसी जगह पे ईएलपीएस है। ईएलपीएस मतलब एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर्स एंड सिंबल्स। तो ये इंपॉर्टेंट बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो जो भी कोई कॉन्सेप्ट है, तो फॉर मान लीजिए मुझे समझना है कि 5 क्या है, तो मैं 5 बच्चों को गिन के दिखाऊंगा, और बच्चों को मैं 5 गिनने के लिए कहूंगा। बच्चा 5 गिनेगा, मैं उसे पूछूंगा कि आपने कितना गिना। बच्चा उसको बता रहा है सर मैंने 5 गिना। कैसे गिना हमने? तो ऐसे गिना 1 2 3 4 5। ये कितना है? 5 है। तो बच्चा एक्चुअली 5 का मतलब समझ रहा है कि 5 की क्वांटिटी कितनी है। फिर उसी को आप 5 चिड़िया, 5 डॉट, फिर विजुअल्स में ले जाते हैं, विजुअल्स बनाते हैं। बच्चे डॉट्स के रूप में समझते हैं कि चाहिए 5 ऐसे भी दिखाए जा सकते हैं, 6 ऐसे भी दिखाए जा सकते हैं, डॉट के रूप में आप दिखाते हैं। देन यू कम टू द सिंबल्स लेवल कि अच्छा 5, सॉरी 4 ऐसे भी होता है, 5 ये सिंबल्स है। तो 5 का मतलब कितना है, तो बच्चे समझते हैं 5 का मतलब कितना है। तो ये एक ट्रेजेक्ट्री है कि कॉन्क्रीट से शुरू करते हैं, ठोस चीज़ों से, फिर उसको पिक्टोरिकल ले जाते हैं, फिर उसके बाद आप सिंबल्स पे बच्चों के साथ जाते हैं, काम करते हैं। सेकेंड कि एक्टिविटी जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के लिए इसको ध्यान रखिए हमेशा कि जब हमको कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, वेन एवर आई एम गोइंग टू टीच द न्यू कॉन्सेप्ट, आई विल फॉलो द ELPS CPA models to teach the that concept. Now
बट इसको हम कराएंगे कैसे क्लासरूम में? तो दूसरे हम अप्रोच यूज करते हैं GRR, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं आई डू, वी डू एंड यू डू। तो कोई भी एक्टिविटी, जैसे आप क्लासरूम में देखा होगा आपने कि बहुत बार क्या होता है, टीचर्स बच्चों को छोड़ दिया, बच्चे खुद से कर रहे हैं, या टीचर ने कुछ बताया, उन्होंने फिर उसके बाद बच्चों का अभ्यास का सवाल नहीं दिया, उनको कुछ करने को नहीं दिया। लेकिन जो आप समझते हैं, मान लीजिए 24-25 कैसे जोड़ा जाता है, ये बच्चों तक कैसे ले जाएंगे? तो इसकी एक मॉडल है। कोई अगर आप इसको जानते हैं तो आप बता सकते हैं अनम्यूट करके कि GRR का मतलब क्या है। और इसको हम कैसे यूज करते हैं एक्टिविटीज में? मैं बताना चाह रहा हूँ। यस यस। स्टार्टिंग में जो भी हम कंसेप्ट बच्चों को टीच करना चाह रहे हैं, तो टीचर खुद उसे करके दिखा रहा होगा कंक्रीट के साथ। जैसे टीचर जब आपने एग्जाम्पल लिया अभी 8 और 9 को जोड़ना है, तो मैं बच्चों से कहना चाह रहा हूँ कि 8 में पहले बच्चे डबल करें और फिर 1 जोड़ें। तो मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। उसके बाद मैं इसी तरह के और सवाल बच्चों को दूंगा और बच्चे कर रहे होंगे, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ उस समय, जिससे कि वो समझ पाए कि जो भी समझाया गया था वो करें। और थर्ड स्टेप में बच्चों को प्रैक्टिस हो गई होगी, तो मैं उन्हें इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करने के मौके दूंगा और बच्चे खुद से अब इसी जो मेथड मैंने उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया है खुद से कर रहे होंगे। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। तो इस तरह मैंने खुद किया, मिलकर किया, और बच्चे स्वतंत्र रूप से करने लगे हैं। ये प्रोसेस चल रहा होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहे हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच विकास। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है मैथ्स में कि ये हमेशा नहीं कि ऐसे ही होगा कि आई डू, वी डू, यू डू, हर बार जाएंगे आप करेंगे फिर साथ में करेंगे फिर बच्चे करेंगे, नहीं। आप इसको बदल सकते हैं। आप जब आपने एक दिन कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, वो समझ में आ गया, तो पहले बच्चों को बोलिए कि चलो आप कौन बताएगा करने के लिए, फिर उसके बाद आप मॉडल करिए, एक्सप्लेन करिए, फिर साथ में करिए, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस दीजिए। नीता, आपने रेज किया था हैंड। नहीं, मैंने एक चैट में लिख लिया। Oh, okay. I'm not actually able to see properly chat. Yes. So this is the सुनील what we हाँ inbuilt in the activities कि आपको गतिविधि को ऐसे फ्लो में डालना है। CPA तो करना ही है, लेकिन उसमें आप मॉडलिंग टीचर का बच्चों के साथ मिल के काम करना, वी डू, जिसमें ग्रुप में छोटे पेयर में बच्चे और चिल्ड्रेन, टीचर और बच्चे एक साथ सवाल को हल कर रहे हैं, जैसे आपने समझा दिया। अब उसी सवाल को साथ साथ में हल कर रहे हैं। साथ में कैसे करते हैं? पहले आपने सवाल बोला, बच्चों को करने दिया, और साथ साथ में आप भी कर रहे हैं कि देखो करने का क्या तरीका है। आप रुक रहे हैं, थोड़े पॉज दे रहे हैं, उनके साथ साथ आप भी सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप स्वतंत्र रूप से उनको खुद से करने का मौका दे रहे हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसको हम इनबिल्ड करते हैं अपने एक्टिविटीज में डिजाइन करने में, वो टीचिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सरबानी, यस। Quickly, I am absolutely fascinated by this, the steps that you just mentioned. I do, you do, we do, or whatever, because I saw the same thing, exactly the same script in South Africa. और उधर भी स्कूल्स पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले स्कूल्स है उधर ये सब हो रहा था। तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड थोड़ा बता देंगे कि ये I do, we do, you do, or what is this pattern? ये कहाँ से आ रहा है? Yes, definitely. If we go to the learning theory, so there are different learning theories. We all know the John Piaget, Vygotsky. Vygotsky talk about the learning happen in the easy way when we learn with the adults. तो स्कैफोल्डिंग एक जो कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे लर्निंग को दूसरे को सिखाते हैं। और इसमें अगर मान लीजिए एक टास्क मॉडल है, जैसे कि बच्चा का एग्जिस्टिंग जो लर्निंग लेवल है, मैं उसमें डिटेल नहीं जाना चाहता। मान लीजिए एग्जिस्टिंग मेरा एक्स है, मतलब मुझे एक्स लेवल पे मैं हूँ, और तो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये स्कैफोल्डिंग में कॉन्सेप्ट है कि वो बड़े एडल्ट के मदद से अगर नेक्स्ट लेवल पे वो जा सकता है। तो बाइगोस्की के सिद्धांत में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, तो आपका जैसे मान लीजिए मुझे एक अंक का 1 से 9 तक गिनना आता है मुझे, और उसका जोड़ मुझे आता, तो अगर मुझे 1 से 9 गिनना आता है, तो अगला लेवल नंबर्स में हम देखेंगे x+1 क्या होगा कि दहाई की अवधारणा बताना, समझना। x+2 हो जाएगा दहाई इकाई को गिन पाना एक साथ।
तो अगर मैं अचानक x+2 पे चला जाऊं तो वो भी मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा कि मैं दहाई इकाई को मैं अभी नहीं गिन पाऊंगा, मुझे दहाई अभी नहीं समझ में आता है। तो मेरा नेक्स्ट जो लेवल है अभी, जो मैं बड़े की मदद से कर पाऊंगा, आसानी से सीख पाऊंगा, वो x+1 है, दहाई को समझना। तो अगर उसको दहाई को कैसे समझते हैं, उसको अगर मॉडल करके बताया जाए एक सीक्वेंस में कि आई डू, और बता रहे हैं करके, टीचर समझा रहे हैं दहाई, फिर बच्चों के साथ मिलकर कर रहे हैं, और फिर बच्चों को इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस दे रहे हैं, तो बच्चा वो दहाई आसानी से वो सीख जाएगा। ठीक है, उसको आसान होगा। तो आपको इसको ये वहीं से इसके फोल्डिंग से आता है, आप गूगल करके और डिटेल पढ़ सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड द टास्क, बिकॉज टास्क बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें। ठीक है, सो वो आसान बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि वो कैसे उसको आगे टास्क वेरी इंपॉर्टेंट है कि टास्क के आधार पे करें। और इसका दूसरा, इसको अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे, सो ये जेआरआर को एक ब्रॉडर अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे एल है, रूम टू रीड, अदर ऑर्गेनाइजेशन इज एडुकेटिंग विद द गवर्नमेंट, वी फॉलो द स्ट्रक्चर पेडागोजी एंड स्ट्रक्चर पेडागोजीज के देर आर सर्टेन एलिमेंट। और ये कई सारे इस पर रिसर्च हुए हैं, अफ्रीका कंटेन सरबानी भी जिसे उन्होंने मेंशन किया, और आरटीआई इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा, साइंस ऑफ टीचिंग उनका एक विंग है, उसके थ्रू बहुत सारे रिसर्च होते हैं। तो इस्टेब्लिश है कि बच्चों के लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रक्चर पेडागोजी बहुत ही मददगार होता है। तो उसी के कुछ एलिमेंट हैं कि उसके लिए आपको एक लर्निंग आउटकम होना चाहिए, उसके लिए आपका सिस्टमेटिक लेसन प्लान होना चाहिए, उसके में स्कैफोल्डिंग का स्टेप्स होना चाहिए। तो वो उसको डॉक्यूमेंट किया गया, और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में ये यूज़ किया जा रहा है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारे शोध भी इस पे अब इसको इस्टेब्लिश कर पाए हैं, जिसको हम कई भाषा में एक्सप्लिसिट गाइडेड इंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, so moving to the next, we have very limited time, so I know this is very detailed things, we can't cover all things. So there are some steps, you can see the teaching through problem solving, इसको भी हम combine करते हैं कि आपका steps क्या होगा पूरा पढ़ाने का। तो इसके इसके कुछ एलिमेंट हैं कि मैं उस डिटेल में नहीं जाता है कि ये कहाँ से अभी ऑरिजिन है, क्योंकि वो समय नहीं हमारे पास। कि कोई भी सवाल कराना है तो उसके पहले क्या होगा, उसके दौरान क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो पहले में टीचर का मॉडलिंग होना, सवाल पूछना, उसके समझ पे चर्चा करना, फिर दौरान में बच्चों को सवाल हल करने के लिए देना, जब बच्चे सवाल हल कर रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करने के साथ उनको फीडबैक देना, और फीडबैक में उनसे क्वेश्चन आंसर करना, और जब वो कर लिए तो बच्चों को चेक करने के लिए बोलना, खुद से चेक करो, कि टीचर पर नहीं ओरिएंट होना चाहिए। बच्चों से बोलिए, जैसे मान लीजिए 24 में 25 उन्होंने जोड़ा, बच्चों से बोलिए खुद से चेक करो वो सही है कि नहीं। और चेक करने का मतलब ये नहीं कि हर बार आप मतलब फार्मूला से चेक कर रहे हैं, आप वापस जाइए, अपने स्टेप को देखिए, इट्स गोइंग बैक, लुकिंग बैक, और उस स्टेप को मैंने सही किया कि नहीं किया, जो पूछा था वही किया कि नहीं किया। और उसके बाद अगला स्टेप है बच्चों को बड़े समूह में बताने का मौका देना, एक्सप्लेन करने का मौका देना। बच्चों बोलिएगा अपने सवाल कैसे हल किया, लेट देम चिल्ड्रन टू एक्सप्लेन हाउ दे डू इट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, लेट देम एक्सप्लेन, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे विल एक्सप्लेन, दे विल स्ट्रेंथन देयर अंडरस्टैंडिंग। देन नेक्स्ट स्टेप, एक्सटेंडेड सवाल पूछिए। जैसे मान लो 24+25 हमने हल कराया और बच्चों ने उसका जवाब दिया 49, तो आप उसमें बदल सकते हैं, अच्छा 24+25 था, इसमें अगर 24 को मैं 26 कर दूं तो क्या जवाब होगा। या मैं 24+25 में 49 आ गया, तो मैं अगर 24 मिटा दूं और उधर 49 लिखा हुआ है मेरे इक्वेशन में, तो इस पे कौन सा नंबर आएगा, क्यों आएगा। तो ऐसे एक्सटेंडेड सवाल पूछना बच्चों से। फिर उसके बाद की कॉन्सेप्ट जो है वो समराइज करना। These are the some steps that we follow in doing the activities and designing the activities for explicit guided teaching. So ये बहुत important हो जाता है। I just briefly I will show you one activities. So there are some TLMs that we use. You are all aware about. स्ट्रॉस दैट वी यूज। तो अगर ये आपके पास स्ट्रॉस है, सिंपल गणित माला है, गणित माला का हम यूज करते हैं। स्ट्रॉ का उपयोग हम करते हैं बच्चों को नंबर्स की ग्रुप का समझ, कि नंबर हम जानते हैं 2-3 उदाहरण है, एक समूह के रूप में संख्याओं को समझना है। तो जब हम बंडल तेल का यूज करते हैं, या कंकड़ का यूज करते हैं, या कोई मटेरियल अदर का यूज करते हैं, तो समूह की अवधारणा समझ में आती है। तो बच्चों को अगर मुझे अगर काउंटिंग सिखानी है, कोई एक्टिविटी सिखानी है, तो मैं क्या करूँगा कि उसी एक्टिविटी के स्ट्रक्चर्स में मैं जाऊंगा। तो मान लीजिए
मुझे आज 109 सिखाना है, तो मैंने बच्चों से बोला, अच्छा मैंने उनके सामने 109 तीलियां मैंने कुछ रख दी या कुछ तीलियां मैंने रख दिया, और उन्होंने बोला चलो इसको गिन के बताओ कैसे गिनोगे आप। लेट द सी, देखिए बच्चे कैसे गिन रहे हैं। गिनने के बाद आप बच्चों को गिन के बताइए, मॉडल करके बताइए, देखो मेरे साथ गिनिए कैसे गिनते हैं, मैं गिन के दिखाता हूँ कैसे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक गिन के दिखाइए। और उसके बाद गिनने के बाद अलग अलग नंबर्स गिनिए, चलो मैं 5 गिन रहा हूँ, फिर मुट्ठियाँ कुछ निकालता हूँ, 1 2 3 4 5, कुछ और निकालता हूँ मुट्ठी में, गिनता हूँ 1 2 3 4। अच्छा अब ये मैंने गिन लिया, अब सबको तीलियां बांट दीजिए। अब बोलिए सब मेरे साथ साथ गिनेंगे। अब बोलिए कोई भी नंबर, चलिए आप कोई भी कितने भी तीलिए इसमें से निकालिए अपने। बच्चे वो ढेर में से दो कुछ तीली मुट्ठी में से निकालते हैं, और उनके बोलिए गिनो। बच्चे गिन रहे हैं 1 2 3, और आप भी उनके साथ बच्चों के साथ बोल रहे हैं 1 2 3, और फिर उनको गिन के दिखा रहे हैं। तो वी डू कर रहे हैं, या ग्रुप कर दीजिए बच्चों को, अलग अलग कंकड़ दे दीजिए, तीलियां दे दीजिए, बच्चों को गिनने के लिए बोलिए, बच्चे गिन रहे हैं। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, बच्चों बोलिए खुद से, चलो मैं अलग अलग नंबर बोलता हूँ आप गिनेंगे, 5 4 3, ऐसे अलग अलग नंबर्स बोल रहे हैं, बच्चे उतने तीलियां गिन रहे हैं। तो ये यू डू कर रहे हैं इसको, बच्चे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब इन्होंने गिन लिया बच्चों ने, तो आप बच्चों को, किसी एक बच्चे को बोलिए खड़ा कराइए और पूछिए कि अच्छा चलो बताओ आपने जो अभी नंबर गिना कितना गिना था। तो वो बताएगा अच्छा मैंने 5 गिना था। आपको कैसे मालूम ये 5 है? तो अच्छा मैंने इसको ना एक एक करके गिना, 1 2 3 4 5, जैसे 5 है। अच्छा उसमें से मैं अगर 2 तीली निकाल लूँ तो अब ये कितना होगा? अच्छा, तो बच्चों को देखिए, अगर आप शुरुआती स्तर में बच्चे हैं तो दोबारा गिनेंगे 1 2 3, कोई इशू नहीं, गिनने दीजिए, शुरुआती स्टेज में बच्चों को गिनने दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे कॉम्बिनेशन समझ जाएगा कि अच्छा 3 था और 2 उसके हाथ में था, ये 5 था। तो अच्छा 5 था। उसके बाद फिर आप समराइज करिए कि हम लोग कैसे गिनते हैं, और जब हम गिन रहे थे 1 2 3 4 5, क्या हो रहा था? आप जरा बताइए कितनी गिनती हर बार बढ़ रही है? हर बार जब मैं गिन रहा हूँ 1 2 3, 2 से 3 पाए तो मेरी कितनी गिनती बढ़ी? एक गिनती। 4, कितनी गिनती बढ़ रही है? एक गिनती बढ़ रही है। तो जब हम एक एक में गिनते हैं, एक ही गिनती हर बार बढ़ती है, जो उल्टी गिनती आप करा रहे हैं। तो इसमें और भी मटेरियल जैसे डाइस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है बच्चों को शुरुआती काउंटिंग दिखाने के लिए। बच्चों को इसके थ्रू आप एक्टिविटीज कराइए। लेकिन जब आप एक्टिविटीज करा रहे हैं, when you are doing the activities, you are just be focus on the all the step that you have to follow. You have to ask children to recognize any numbers, then you have to model them, explain them, कैसे ये गिनते हैं। फिर बस को समूह में कराइए, फिर इंडिपेंडेंट कराइए, बच्चों को एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए क्या क्या नंबर आपने किया, और फिर उनको आप कुछ एक्सटेंडेड सवाल पूछिए, और उसके बाद आप उसको समराइज करिए। तो ये से अलग अलग आप चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं आप काउंटिंग में। और भी एक्टिविटीज़ हैं, हम उसको डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वी हैव तो वेरी लेस टाइम। तो जस्ट ब्रीफली आप, अगर आप चैट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप आपने नोटिस किया, अभी हमने ब्रीफली डिस्कस किया, विच स्टेप्स डू यू थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इन द क्लासरूम्स? आप लिख सकते हैं आई डू, वी डू, यस, डू वी सपोर्ट, यू डू इंडिपेंडेंटली। Very nice demonstration, asking question to children is important steps. I see some emoji here. Just need to observe it. Okay, हाँ ये सबटाइजिंग आजकल काफ़ी चल रहा है, ये मुझे भी सीखना है। गुड, you already know that you don't need it's not a different concept, huh? Yes. सो दीज आर स्टेप्स, आप अलग अलग कॉम्पिटेंसीज में आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोई भी आप कॉम्पिटेंसीज करा रहे हैं, काम्स, कोई भी टीएलएम यूज कर रहे हैं आप, नंबर्स और फिर रीडिंग राइटिंग्स यूज कर रहे हैं, तो जो सारे एक्सप्लेन को, यस आई सी द एक्सप्लेनिंग, यस वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सप्लेनिंग जरूरी है, क्योंकि लर्निंग पर्सपेक्टिव से जब आप एक्सप्लेन करने बोलते हैं तो आप बच्चे के सेंसेस को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। बच्चा बोलता है,
तो वो लर्निंग को अपने स्ट्रेंथन कर रहा है वो, क्योंकि वो दोबारा जो समझ रहा है उसको बोलने का, आपने एक और सेंस उसको यूज करने के लिए बोल दिया, उसका माउथ। तो अभी तो हाथ से करके देखा, लेकिन जब एक्सप्लेन कर रहा है तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हर बार बोलिए एक्सप्लेन करिए, और एक्सप्लेन करते समय सवाल पूछिए आप क्रिटिकल। Yes, so interactive. So these are different activities. Now moving to the next last components, the math games that it's a workbook. We are not going to detail it. It's not only the workbook that you need to do. Textbook use कर सकते हैं, सवाल खुद से बना सकते हैं। मकसद ये है कि बच्चों को एक स्वतंत्र उनका समय मिलना चाहिए, जहाँ पे वो कुछ प्रैक्टिस कर पाएँ, और हमें बच्चों के इंगेजमेंट को मैक्सिमाइज करना है, उसको ज़्यादा करना है। धीरे धीरे टीचर की जो मॉडलिंग है, इंगेजमेंट है, वो हमें कम करना है। तो आप यूज कर सकते हैं डेडिकेटेड ब्लॉक, जहाँ पे 15 मिनट 10 मिनट बच्चे अलग अलग सवाल बनाइए, क्रिएटिव सवाल बनाइए, और बच्चों को खुद से उनको करने के लिए बोलिए। There are some steps that we follow in doing the workbook also, कि before, during, after सब क्या करेंगे। They're very systematic. Now come to some games. So we all knows that game play a big role. So what you have to do when we say the games, it's not very general games. It's a very structured games and learning outcome oriented games. When we say talk about the games, you have to think about the outcomes, which outcome you are going to achieve, and you can also design the game for the different labels, so that there are different labels of games. So simply I say, I just give you just, अब मेरे हाथ में आप दिख नहीं पाएगा शायद, बहुत छोटा डाइस है। आपको दिख रहा है सबको? कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं। 2 डाइस आई हैव। Am I audible? Yes, yes, you can see it. Yes. So ये इसको एक गेम्स का नाम है, स्टॉप या गो। तो आप ऐसे गेम्स बच्चों बोल सकते हैं। चलो मेरे हाथ में 2 डाइस है, हमको एक टारगेट रखते हैं। सही, आप यू कैन प्ले विद वन सिंगल आल्सो। वी हैव द टारगेट, लाइक टारगेट वी हैव 10। 10 पे जो पहुंच जाएगा, हम जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे। 10 पे जो पहुंच जाएगा, अपने नंबर्स को जोड़ेगा, 10 पे जो पहुंच जाएगा जीत जाएगा। तो मैंने डाइस रोल किया सपोज, और रोल करने के बाद मेरे आया 2, सॉरी यहाँ पे मुझे आप देख सकते हैं 4। तो मैं क्या करूँ, अपने कॉपी में 4 लिखूंगा। फिर अगले का चांस आएगा, उसने डाइस किया, उसका आया मान लीजिए 2, तो अपने में दोस्त लिखेगा। फिर मैंने इसको स्क्रॉल किया, अब मेरे पास है 5, तो मैं 5 जोड़ लूंगा 9। फिर अगला मैं चांस चलूंगा तो मेरे पास 5 और आ गया, तो अभी कितना हो गया 15। क्या मैं जीत गया? नहीं, जो 10 पे पहुंचेगा वो जीतेगा। तो मैं फिर से चांस चलूंगा, मेरे पास 4 आया, तो मैं 15 में से 4 घटाऊंगा, क्योंकि मुझे 10 पे पहुंचना है, चाहे वो आप जोड़ के या घटा के 10 पे पहुंचना है। तो मेरे पास 11 भी है, मैं दोबारा चांस चलूंगा, और फिर मैंने देखा अरे 1, मैं अब 1 घटाया, और मैं 10 पे आ गया, तो मैं जीत गया। तो आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आपको उस टारगेट पे पहुंचना है। तो यू कैन सेट डिफरेंट नंबर्स एंड यू कैन यूज द 2 डाइस आल्सो। अगर आपको बिगर नंबर के साथ करना है, 25 के साथ, 50 के साथ, 70 के साथ, तो डिफरेंट गेम्स यू कैन यूज विद द चिल्ड्रंस। और ऐसे कुछ डाइस आप बना सकते हैं, और ये डाइस आप देखेंगे इसमें टेंस भी है। इसमें यू कैन सी द टेंस 18 10-10 में है, और 1-1 में है सिंबल। आप डाइस बच्चों को रोल कराइए, और रोल करने के बाद आप देखिए कि क्या नंबर आता है। सपोज मेरा नंबर आया 58। तो मैं 58 कितना होगा, तो मैं 58 के लिए आप ऐसे आप कार्ड बना सकते हैं, बच्चों से पूछ भी सकते हैं अगर मान लीजिए आपका। तो ऐसे आप कुछ विजुअल्स कार्ड यूज कर सकते हैं क्लास में, इफ यू कैन सी इजिली हियर। ऐसे आप कार्ड यूज कर सकते हैं। तो बच्चों को इसमें से 5 दहाई और 8 इकाई वाला कार्ड्स ढूंढ के निकालना है, और उसको बताना है कि ये 58 है। तो जो बताएगा सही, वो उसको मिलेगा 1 पॉइंट, या आप कोई कंकड़ यूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग डाइस रोल करिए, और उसको मैच करना है इस डिंस ब्लॉक के कार्ड से। तो मान लीजिए मेरे पास 4 दहाई 3 इकाई आया, तो मैं 4 दहाई इसमें ढूंढूंगा, और फिर बच्चों बोलिए गिनो इसको, कैसे पता चला ये कितना है। तो मैं 4 इसको मैं, जैसे मुझे गिनना है 97 है, तो मैं इसको गिनूंगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90। फिर मैं 9 उसके आगे गिनूंगा। जोड़ दीजिए 10-10 में गिनना, नो सिंगल काउंटिंग। सिंगल काउंटिंग जरूरी है, वो आ जाने के बाद आपको टेंस एंड वन प्लेस वैल्यू की काउंटिंग में जाना है। बट हाँ, सिंगल काउंटिंग आने के बाद
पहले अगर बच्चों को 1 2 3 4 यही अच्छे से बोलना, फॉरवर्ड बैकवर्ड आएगा, उसके बाद ही आप जाएंगे 10 से 1 के काउंटिंग में। देयर आर डिफरेंट गेम्स दैट यू कैन यूज। सुबटाइजिंग कार्ड्स के भी बहुत सारे गेम्स हैं, आई हैव मटेरियल बट आई एम नॉट गोइंग डिटेल। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। थोड़ा अब ओपन करते हैं सेशंस को डिस्कशन के लिए। इफ एनी हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन वी कैन डिस्कस। यस, इट्स ओपन फॉर द क्वेश्चंस। किसी का कोई सवाल है? अगर नहीं है तो फिर हम हिता को मैं बढ़ूंगा। If I just 1 minute, if you have any questions, you can ask. Yeah, any point if you want to share from the sessions, any things that you want. Thank you so much, Sunil. I think really engaging session. You went into so much detail and really responded to a lot of things that people were saying. It was very engaging and very interactive. And I think particularly special because you did the session in both Hindi and English. So I think a lot of people were able to kind of take away from this. One question I had, if you don't mind, is if you'd like to share anything on peer-to-peer learning in this space of learning math. So anything that you would like to share there? The peer learning, the peer learning we have, that one we have play learning kit. We have made a different kit for the play learning kit, and that is the self learning mode. So I was just explaining with some games there. So we are incorporating in our module that play learning where there's some independent games like I was saying that's this dice games. Teacher don't need to be there. So ऐसे कुछ आपको इंडिपेंडेंट गेम्स बनाने होंगे जहाँ पे बच्चे वो एक दूसरे को एक साथ खेल पाएं और एक दूसरे को हेल्प कर पाएं, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा जो आई डू वी डू यू डू कर रहे थे, वी डू में आपको बहुत ज़्यादा पेयर पे जाना की जरूरत है, ग्रुप में जाने की जरूरत है। और जो हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे थे कि बच्चों को एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, यू नो दैट द टीचिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल क्या, टीचर टू चाइल्ड इन द बिग ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। एंड हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन इज कि जब आप बच्चों को एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं तो चाइल्ड टू चाइल्ड करिए इन द बिग ग्रुप्स, चाइल्ड टू चाइल्ड इन द स्मॉल ग्रुप एंड चाइल्ड टू चाइल्ड इन द पेयर। सो कई बार आप बच्चों को बोलिएगा बगल वाले को समझाओ कि आपने कैसे किया, उसको बता रहे हैं। कई बार छोटे ग्रुप में बता रहे हैं कि चलो एक दूसरे को एक्सप्लेन करो। फिर कई बार बड़े ग्रुप में आप बोल रहे हैं कि सर मुझे मत बताओ, रोहन ने बताया, रोहन ने, अच्छा रोहन सोहन आपको क्या लगता है कि ये सही है या ये तरीका ऐसे था, आपने कैसे किया था? आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उस पर, यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ। कई बार बच्चों के जो रिस्पॉन्ड आ रहे हैं उस पर आप चुप हो जाइए, आप दूसरे बच्चों से पूछिए कि अच्छा आपने कैसे किया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सो वो इंटरेक्शन मेक अ चाइल्ड टू चाइल्ड, so there different way to do it, we can do it. Thank you. I think there's one question in the chat. Deepshika is asking if we are working in a remote location and we do not have resources, how do we proceed with the block 4? Yes, so it's in the resources. तो आपने जैसे हमने देखा कि resources हम minimum पे यूज कर सकते हैं। We have different models, और हम you know that as an organization we work with a scale with the government. I mean know that कि resources क्या होगा। We have minimum scores, so इसलिए when we use the straws, you can concrete materials, dice they make on the chalkboard, उस पे बना सकते हैं। अब कार्ड आप कागज पे आप खुद काट के कागज अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। सुबटाइजिंग के आप डॉट्स खुद बना सकते हैं। तो वी डू दैट कि क्या होगा, तो इसलिए जैसे गणित माला है, कई बार बिकम वेरी एक्सपेंसिव, वी डोंट यूज समटाइम। तो बच्चों उनको बोलते हैं कि आप मोतियां खुद पिरो लीजिए, या आप नहीं कर रहे हैं तो नंबर लाइन यूज करिए, ठीक है। बिकॉज चिल्ड्रन नो द कॉन्सेप्ट इन द कॉन्क्रीट इन द ग्रुपिंग, सो ऑलवेज उसको हम जाने तो नंबर लाइन आप बनाइए। तो यस देयर आर डिफरेंट वे टू डू इट। I think यहाँ पे विकास ने बोला है कि resources are helpful, but the core is mental processes. Yeah. We can explore local materials, hands-on activity, and use games and stories which need minimum resources. I think very beautifully put. Thank you, Vikas. I think वो innovativeness आ ही जाता है अगर आपका intention हो, और जो आपके सामने है आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने भी बोला सुनील, इतना मतलब मोतियों को पिरो के अपने सामने जो है
उनमें से क्या कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्या आप हमें 4 ब्लॉक मॉडल पर आधारित सत्र योजना दिखा सकते हैं जिससे कि हम समग्र रूप से देख सके और समझ सके। Yes, yes, yes. Do we have our entire teacher guide is designed on the 4 block model. तो मीन्स मैं आपको कुछ सैंपल भेज सकता हूँ, अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हमारा टीचर गाइड पूरा उसी पे आधारित है कि एक्टिविटीज कैसे पूरे साल आपका अलग अलग एक्टिविटीज क्या होगा, तो वो बना हुआ थैंक यू सो मच। आई थिंक सुनील, जो आप भेज सकते हैं तो हम सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भेज देंगे। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक अगर और कुछ नहीं है तो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू, बहुत लोगों ने टाइम स्पेंड किया हमारे साथ। 6 बजने वाले हैं। वी वोंट कीप यू लॉन्गर। थैंक यू सुनील, थैंक यू शिवांगी Yeah. फॉर मेकिंग दिस हैपन। Thank you so much. and Ahita. And please do write to us in case you all want to be connected to Sunil and Shivangi. Would really happy to connect. Yeah. Yeah, it's very engaging and it's very learning for me. I always say that I'm a learning person. It's very learning for me be here and discuss, because more best learning is the teaching. And Helena Abbaji also say about the teaching. जैसे resources में कहा, टीचर के पास 2 चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और डेडिकेशन। 2 थिंग्स टीचर है, they will make the resources, they will make children learn. Yes, I will end with that. Thank you so much, Hita, for giving this opportunity and having this wonderful master class. Yes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you Thank so you much. everyone for joining here. Thank you. Thank you. Okay.